We discussed some products like dopa, then dopamine, and then we discussed epinephrine and norepinephrine, right? So today we discuss thyroid hormones in the products, right? Products of phenylalanine and tyrosine, right? So today we'll discuss thyroid hormones and our pigment melanin, right? And after that I will summarize the disorders of phenylalanine and tyrosine. So let's start this now. Anybody who can tell me the steps of metabolism of phenylalanine and tyrosine? First product was phenylalanine and it was converted to tyrosine, right? And tyrosine was then converted to para-hydroxy phenyl pyruvate, right? Then it was converted into homogentisate, right? Then it was converted to 4-methyl acetoacetate, right? Then it was converted to 4-fumarate acetoacetate, right? Then this fumarate came out and then acetoacetate came out, the two fates, right? Fumarate will enter TCA cycle and this will lead to the synthesis of fats, right? Then we discuss the structure. First we will discuss phenylalanine. This was phenyl ring and this is our phenylalanine. This is our phenyl ring, this one only, and this is our alanine. So phenyl plus alanine is equal to phenylalanine. Then comes tyrosine. What was the formula? Para-hydroxy phenyl. So we'll introduce a hydroxy group at para position and I will write alanine only, right? To short and summarize fast, right? Para-hydroxy phenyl alanine, right? Then this was an example of a hydroxylation reaction and we use enzyme phenylalanine hydroxylase. And second step was transamination reaction, right? And the enzyme was tyrosinase, okay, or tyrosine transaminase, right? Then this is a reaction which requires vitamin C and we'll get, sorry, para-hydroxy phenyl pyruvate अभी हमने बनाया नहीं है ना, para-hydroxy phenylalanine, and now this is a transamination reaction and we will convert into para-hydroxy phenyl and pyruvate COO and pyruvate COO CH, right? Pyruvate is there. Then homogentisate, there will be opening of ring and we'll get two hydroxy groups here and CH2COO. Homogentisate, then comes homogentisate oxidase and we'll get our 4-methyl acetoacetate, and these both are isomers and the other enzyme is isomerase, right? Then we have two products, the two fates, fumarate and acetoacetate. Fumarate will enter our TCA cycle and will lead to synthesis of glucose, and acetoacetate will enter fat metabolism or will lead to the synthesis of fatty acids, right? And so we are getting both glucose and both fats, so it is both glucogenic and a ketogenic amino acid. Gayatri beta बैठ जाओ, right? And it is a aromatic amino acid, right? Aromatic क्योंकि we have a phenyl ring, right? And और कुछ था इसकी इंट्रोडक्शन में, बोलो असेंशियल तो है, ठीक है। और हाँ, स्पेयरिंग एक्शन हमने किया था इसका, है ना? अगर phenylalanine we have enough phenylalanine, it is converted to tyrosine. अगर tyrosine नहीं भी खा रहे तो phenylalanine will convert itself into tyrosine via hydroxylation reaction, right? क्लियर है सबको? अब हम आज का स्टार्ट करें. सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज थायराइड हार्मोन्स. So I will draw the phenylalanine ring or tyrosine ring like this, right? Para-hydroxy was there, phenyl was there, and alanine was there, right? And
In the same way, I will draw one ring here. Right? So first of all, we attach a thyroglobulin residue. Because we are forming thyroid hormones, right? So thyroglobulin residue is attached on both this. Thyroglobulin, right? Now this was the first step, right? In the second step, there is introduction of iodide into it. Iodide, right? अब किसी को हाइपोथायराइड हो रहा है, सपोज करो, तो वो आयोडीन तो पूरी ले रहा है, लेकिन वो प्रोटीन ही पूरा खाएगा तो उसको हाइपोथायराइड जाएगा ना. जस्ट सी रिलेशन, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग दिस हार्मोन फ्रॉम phenylalanine or tyrosine, and they are amino acids. Amino acids are derived from intake of proteins, right? So if you are not taking enough protein in the diet, तो you can फ्यूचर में आप थायराइड में प्रॉब्लम आ सकती है ना. सो ये बात याद रखनी. और आयोडीन नहीं प्रॉपर लोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इससे तो आगे बनने हैं, राइट? सो विल इंट्रोड्यूस आयोडाइड हियर, राइट? व्हेन आयोडाइड इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट विल यू गेट? दिस इज थायरोग्लोबिन लगा दूं साथ में, और इसी तरह इसमें लगा दिया थायरोग्लोबिन. विल इंट्रोड्यूस आयोडीन, तो विल इंट्रोड्यूस आयोडीन. यहाँ लग गया, इसमें लगाएंगे हम 2 आयोडीन, एक मॉलिक्यूल में एक लगाए, तो बन गया MIT. मोनो मीन्स 1 आयोडो टायरोसिन, एंड दिस इज अवर DIT, डाई आइडो टायरोसिन, राइट? सो रिमेंबर, हमने जब प्रीवियस क्लास शुरू की थी, वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एलानिन, एंड व्हेन वी इंट्रोड्यूस हाइड्रोक्सी ग्रुप, इट वाज कन्वर्टेड इनटू tyrosine, right? And we have tyrosine residue to which we have attached a thyroglobulin in the beginning, right? So we have this molecule, right? After that, we are introducing iodine to it. In one molecule, we introduce one molecule, so we have mono iodo, and this is complete is tyrosine, and this is our 2-iodine diiodo tyrosine, right? Again, in this molecule, we are attaching another molecule of DIT, diiodo tyrosine. So 2 plus 1 is equal to 3, triiodo thyronine, and we have DIT. 2 plus 2 is equal to 4. We'll get our T4, tetrahydrotyrosin बन गया ना, T3 and T4, राइट? अब इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी, एक बार एक बना के दिखाऊं पहले. सो दिस इज अवर थायरोग्लोबुलिन है, और इतना मॉलिक्यूल अलानिन लगा, साथ में फिनाइल रिंग लगी और हाइड्रोक्सी लग गया. दिस इज इतना क्या है? टायरोसिन मॉलिक्यूल. और अगर इतना करें तो क्या है? फिनाइल अलानिन, है ना? इतना अलानिन और फिनाइल रिंग थी, फिनाइल अलानिन था. जब हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया तो बन गया टायरोसिन, और टायरोसिन ही हमने साथ में अटैच कर दिया थायरोग्लोबुलिन रेसिड्यू, राइट? अब इसमें जब हम एक आयोडीन अटैच करेंगे तो विल गेट अवर मोनो आयोडो टायरोसिन, राइट? और अगर हमने 2 आयोडीन अटैच कर दिए तो बन गया डाई आयोडो टायरोसिन, राइट? अब इसमें हमने एक मॉलिक्यूल और अटैच किया डाई आयोडो टायरोसिन का, राइट? अगर मोनो आयोडो है तो डाई, और 2 plus 1 is equal to 3, बन गया हमारा T3. और अगर 2 वाले में ऐड किया डाई वाला, 2 plus 2 is equal to T4, बन गए थायराइड हार्मोन्स, बन गए. एनी डाउट? सिंपल है, स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ, क्रैमिंग नहीं करनी हमने. मोनो आयोडो, मोनो मीन्स 1 आयोडो, आयोडीन, टायरोसिन, phenylalanine plus hydroxy group is equal to tyrosine. First we attach thyroglobulin residue, so we get our molecule of monoiodotyrosine. If we attach one more iodine, we'll get our diiodotyrosine. We have 2 molecules now, monoiodotyrosine and our diiodotyrosine. In both these molecules, we are attaching a molecule of diiodo. 2 iodine more are attached, so we'll get 2 plus 1 is equal to 3. That is our triiodo, and T4 our
thyroid. These are thyroid hormones कि नहीं? And how they are regulated? Via TSH. It is thyroid stimulating hormone. तुझे क्लास में बहुत नींद आती है ना, बिहू डांस वाली नींद आती है तो चाय पी के आ जाया कर, पानी पी लेकर 2 मिनट ब्रेक ले आकर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलें। तो अगर थायराइड की रिपोर्ट पढ़नी सीखनी तो सीख लो आज, आई विल गिव जस्ट 2 मिनट्स। वी हैव वैल्यू ऑफ T3, T4 एंड TSH। और सुन लो, ये काम आएगी घर में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये इंक्रीज है, TSH इंक्रीज है, तो बताओ क्या हुआ, हाइपो की हाइपर? बोलो, हाइपर बोल रहे हो ना, बात सुनो, हाइपर क्यों है? गलत है, TSH इंक्रीज हुआ है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज वी हैव लो लेवल्स ऑफ T3 एंड T4। अगर TSH आपका नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आएगा ना तो पेशेंट इज हाइपोथायराइड। ये रिमेंबर करनी बात मेरी, जब रिपोर्ट देखनी है ऐसे देखनी है, T3 T4 अगर लोअर साइड पे हैं थोड़े और TSH इंक्रीज्ड है, राइट, मोर देन नॉर्मल, तो द पेशेंट इज हाइपोथायराइड, नॉट हाइपरथायराइड। Because TSH is increased, what does it indicate? It is stimulating the thyroid hormones to get increased in blood. ये कम है तो ये बड़ा हुआ है, इसलिए बड़ा है क्योंकि we are patient is hypothyroid। और अगर ये T3 T4 बड़े हुए हैं और TSH lower, then T3 T4 बड़े हुए हैं और TSH lower side पे है, तो what does it indicate? Hyperthyroid. How? बिकॉज ये ऑलरेडी बड़े हुए हैं, दिस इज अ रेगुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रेगुलेट कर रहा है, ऑलरेडी बड़े हैं तो ये अपना लेवल डिक्रीज करेगा ताकि ये ज्यादा ना बने, तो पेशेंट इज हाइपर थायराइड। और अलग अलग करेंगे बाद में हार्मोन्स के चैप्टर में, लेकिन ये जस्ट इंट्रोडक्शन दे दी। क्लियर है सबको? थायराइड हार्मोन्स क्लियर हो गए बच्चों को? जस्ट सी डायग्राम, दिस वाज आवर टायरोसिन रेसिड्यू, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन लग गया, साथ में थायरोग्लोबिन लग गया, राइट। व्हेन इंट्रोड्यूस्ड मोनोआइडो तो ये बन गया, एक आयोडीन यहाँ लग गया, इसमें 2 अटैच किए तो बन गया डाईआइडो, मोनोआइडो टायरोसिन एंड डाईआइडो टायरोसिन। देन एक मॉलिक्यूल अगर और अटैच करेंगे तो बन गया 1,2 डाई वाला और 1,2 डाई वाला, ये था मोनो तो बन गया T3, 1, 2, 3, 4 T4 थायरोक्सिन। क्लियर है? So now you don't have to cram, just go from the structure of phenyl ring. Phenyl ring is 6-membered ring. When you will, if you are not able to remember the structure of alanine as well, write down alanine. Phenyl ring, 6-membered ring plus alanine, phenylalanine. When you introduce hydroxy group, it will become tyrosine, right? And tyrosine you attach thyroglobulin residue, right? And monoido and diido, you will get mono and di. Again attach di, you will get T3 and T4, just simple as a back of hand, right? In a similar manner, अब हम करेंगे your मेलानिन पिगमेंट रह गया। तो मेलानिन से क्या होता है? मेलानिन मीन्स कलर आएगा, रेड पिगमेंट और ब्लैक पिगमेंट होते हैं, राइट, एंड इट इज ए प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ द स्किन कलर, राइट। द फंक्शन ऑफ मेलानिन इज द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम सन रेडिएशन। और कहीं पे किसी के मोल है, जहां पे जैसे मेरे यहाँ पे मोल है, देयर इज हाइपर पिगमेंटेशन देयर ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द मेलानोसाइट्स, राइट। और अगर किसी के हेयर जल्दी ग्रे हो रहे हैं तो रूट्स में वो मेलानोसाइट्स, मेलानिन इज लेस, राइट। इसका पाथवे करें एक बार, सिंथेसिस ऑफ मेलानिन का। मेलानिन से डिजीज कौन कौन सी एसोसिएट होगी? एल्बिनिज्म सुना? एल्बिनिज्म, वाइटिलिगो, कईयों के व्हाइट पैच बनते हैं, है ना, वो सारी डिसऑर्डर मेलानिन पिगमेंट के साथ आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेटाबॉलिज्म फर्स्ट। यार इतना खांसते क्यों मेरी क्लास में? सो अगेन विल स्टार्ट विद फिनाइल रिंग एंड अलानिन and hydroxy group, that is your tyrosine. Clear है सबको? Tyrosine, phenyl plus alanine is phenylalanine. When we introduce hydroxy group, we got our tyrosine, right? Tyrosine में हम अब कौन सा रिएक्शन करेंगे? एंजाइम। तो क्या बनता है पहला हमारा? डोपा किया था हमने, डोपा में क्या था? डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एंड
देखो ठीक है कि नहीं ठीक, मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे चेक करो, ठीक है। देन अगेन enzyme same tyrosinase is added, so we'll get our dopaquinone। मैंने स्ट्रक्चर कराई थी प्रीवियस क्लास में, याद करो। when we have 2 hydroxy groups in phenyl plus alanine we get our dihydroxy phenylalanine, this was our dopa, right? And when we have 2 keto groups, right, this is our dopaquinone। Quinone represent keto group and we have 2 keto groups, 1 2 with phenyl ring phenylalanine dopaquinone, 2 hydroxy groups dihydroxy phenylalanine dopa। तो रिएक्शन इज टायरोसिनेस, राइट। आगे इसकी अब विल हैव 2 फेट्स, राइट। 2 steps are there, one is enzymatic and one is spontaneous, right? One is enzymatic and the second is spontaneous। तो जो नॉन एंजाइमेटिक है, सॉरी, उसमें क्या होगा, विल फॉर्म फर्स्ट लीकोडोपाक्रोम, then dihydroxyindole, lecodopachrome, then 5,6 dihydroxyindole, again tyrosinase, and we'll get indole 5,6-quinone। From here we'll form melanochromes, that is our black pigment, black मेलानिन का ब्लैक पिगमेंट बनेगा। और जब हमारे पास डोपाक्विनोन में इन द सेकेंड स्टेप, दिस इज अवर डोपाक्विनोन, राइट, 2 keto groups phenylalanine dopaquinone, then we introduce cysteine over it, so this is our, ये हिलता बहुत है, and we attach cysteine here। Cysteine is a sulfur containing amino acid or not? Cysteine, cysteine, methionine, they are sulfur containing। when cysteine is attached, it will form the red melanin pigment, red pigment। क्लियर है सबको? क्लियर है? ये उसकी मैकेनिज्म की टाइप है, बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकता, ये नेचर ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, ऐसे ही बॉडी मेटाबोलाइज करती है। मैंने खुद तो इसको बनाया नहीं, साइंटिस्ट ने इसको पढ़ के किया है ना, इसको मैं खुद अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकता, है ना। तो ये नेचर ने बनाया है, रिएक्शन साइंटिस्ट ने ढूंढा है, तो आई एम नॉट एबल टू चेंज इट, राइट। तो थोड़ा बहुत तो क्रैम करना पड़ेगा, है ना, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। बोलो, आई थिंक सारे बोर हो रहे हैं थोड़ा, है ना, आई नो, लेकिन इट इज ए डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन करना पड़ेगा ना। इसमें से 2 क्वेश्चन पीजी में पक्का आएंगे, थोड़ा अलर्ट हो जाओ। दिस इज डोपाक्विनोन, राइट, वी हैव 2 keto groups and phenyl and alanine, this is dopaquinone, राइट। नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में दोबारा हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे और साथ में यहाँ पे लगेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अवर लीकोडोपाक्रोम, राइट। देन इट इज कन्वर्टेड टू इंडोल रिंग। अगर NH ग्रुप हो ना, 5 मेंबर रिंग हो, तो डेट इज इंडोल, 5,6 डाइहाइड्रोक्सी इंडोल बन गई। देन अगेन टायरोसिनेज आएगा, तो दोबारा दोनों इंडोल वाले कीटो ग्रुप आ गए, तो बन गया इंडोल 5,6-quinone। This is precursor for the synthesis of melanochromes that form the black pigment of melanin, right? In the same manner, when we have dopaquinone and we introduce cysteine there, we'll get this blue one, cysteine, and this will form the red pigment. So we completed tryptophan metabolism first. Then in the previous class we discussed dopamine, epinephrine and norepinephrine, right? अगर किसी को दोबारा रिवाइज चाहिए उसका, तो मैं करवा दूं, बोलो, करवा दूं, ओके। सो दिस वाज आवर phenyl ring, we attach alanine, this becomes our phenylalanine, then we introduce hydroxy group, now this becomes our tyrosine। कितना क्लियर था सबको, है ना। नाउ अब हमने क्या बनाना है, डोपा। सो दिस इज मोनोहाइड्रोक्सी phenylalanine, that is our tyrosine, right? And we discussed dopa is dihydroxy phenyl and alanine, so this becomes our DOP, ये डोपा,
हाइड्रोक्सी फिनाइल अलालीन, दिस इज अवर डोपा। कैसे बनाया हमने, देखो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन किया टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से, हाइड्रोक्सिलेज रिएक्शन किया तो वी एडेड वाटर, तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ था, एक एक्स्ट्रा लग गया, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल अलानीन बन गई। देन अगेन वी आर डूइंग डीकार्बोक्सिलेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगी, तो ये अमाइनो ग्रुप रह गया, तो क्या बन गई हमारी डोपामाइन, राइट, ये बन गया। राइट, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल अलालीन, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल अमाइन, इथानॉल अमाइन है, इथेन है, मीथेन इथेन अमाइन, इथानॉल अमाइन, ठीक है, तो बन गई हमारी डोपामाइन। क्लियर है, क्या यूज किया इसने, हमने इससे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन किया, इसमें हमने डीकार्बोक्सिलेशन की, देन हमने क्या करना था, नॉरएपिनेफ्राइन था, नॉर मींस इट डजंट कंटेन मिथाइल ग्रुप, और एपिनेफ्राइन है तो उसमें मिथाइल ग्रुप होगा, नॉर मिथाइल, तो पहले तो यही बन गया हमारा बेसिक मॉलिक्यूल था, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे एंड CH2 and H2, and we have introduced a hydroxy group at carbon 1 here, so we'll get our norepinephrine, right, and epinephrine contains methyl group, so when we introduce further methyl group here NH2 के साथ, तो we'll get our epinephrine, कैटिकोलामाइंस, कैटिकोल्स अमाइंस, तो बन गई सारी। अब डोपामाइन का फंक्शन बताओ, प्रीवियस क्लास में रह गया था, अल्जाइमर डिजीज सुनी है, बुड्ढों की डिजीज, हार्ट अटैक कामते हैं, that is related to dopamine. Dopamine and norepinephrine serve as neurotransmitters in the brain, right? Norepinephrine and epinephrine, they regulate carbohydrate and lipid metabolism, and they stimulate degradation of TAG and glycogen, and they also cause increase in blood pressure. कैटिकोल मैंने उसकी स्ट्रक्चर करवाई थी, लेट्स सी इट अगेन। कैटिकोल, अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, साथ में फिनाइल रिंग हो और अमाइन हो, दैट इज योर कैटिकोल, राइट। कैटिकोल मींस अगर कीनोन लिख रहे हैं तो 2 कीटो ग्रुप होंगे, अगर 2 हाइड्रोक्सी है तो जैसे डोपा में आता है डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल अलानीन, अगर कीनोन बनाई तो कीटो ग्रुप आ गए, डोपा कीनोन बन गई, है ना, और अगर 2 हाइड्रोक्सी आ गए तो बन गई कैटिकोल, कैटिकोलामाइंस। कैटिकोलामाइंस में 2 थी, मिथाइल वाली और नॉन मिथाइल वाली। मिथाइल वाली कौन सी थी, एपिनेफ्राइन, और जिसमें नहीं था वो नॉरएपिनेफ्राइन थी, और उससे क्या अलग बनना था, डोपामाइन बननी थी हमारी, ठीक है। डोपामाइन का काम करें आगे, द माइन डेरिवेटिव कैटिकोल्स आर कैटिकोलामाइंस, टायरोसिन इज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्राइन एंड एपिनेफ्राइन, राइट। द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू कैटिकोलामाइन चक्कर कहाँ होती है, CNS में एंड एड्रिनल मेडुला, राइट। पार्किंसन डिजीज जो इसके साथ रिलेटेड है, इज कॉमन डिजीज इन एल्डरली विद अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन अबव 60। इसमें क्या होता है, शेकिंग पॉल्सी, हाथ पैर कांपते हैं, मस्कुलर रिजिडिटी, ट्रेमर्स, एक्सप्रेशनलेस फेस, लिथार्जी एंड इनवॉलंटरी, ऐसे कांपते हैं ना, देखा पेशेंट, सुना हो वीडियो पे, देखा हो कहीं पे, है ना। देन बायोकेमिकल बेसिस क्या है इसमें, देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन इन दिस पेशेंट्स। अल्जाइमर के पेशेंट में देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइन, राइट, एंड द बायोकेमिकल बेसिस is exactly is not identified, or disease is due to degeneration of certain parts of brain, especially substantia nigra and locus coeruleus, leading to impairment of the synthesis of dopamine, right। पार्किंसन का ट्रीटमेंट क्या होता है, पहली बात तो अगर आप स्टेरॉइड दोगे ना, वो क्रॉस नहीं करती बैरियर। डोपामिन ऐसा अगर हमने सप्लीमेंट में दे दी, है ना, इट कैन नॉट क्रॉस द एंटर द ब्रेन, राइट, इट इज नो यूज। बट इफ यू गिव एल डोपा और लीवोडोपा, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, कॉम्बिनेशन के साथ एल लगाएंगे ना, कुछ और मॉलिक्यूल अटैच कर, देन विल एंटर, तो इट इज यूज्ड। एंड वन इज कार्बिडोपा एंड अल्फा मिथाइल डोपा, अलॉन्ग विद ये सारे ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। अब एक रियल स्टोरी डिस्कस करूं अल्जाइमर की। उसके जो मास्टर जी थे उनको हो गई अल्जाइमर, ही इज आल्सो PhD इंग्लिश प्रोफेसर थे फगवाड़ा में, तो वही स्कैन स्कून देखे तो उनको प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम मैंने नोट की, जब मैंने उनका देखा ना, 2 दिन के साथ रहा फगवाड़ा में, तो वो प्रोटीन खाते ही नहीं थे, तो मैंने उनकी डाइट में इंट्रोड्यूस किया रोज की 600-700 ग्राम फिश एंड 2 eggs डेली, तो ही वाज ओके विद इन 3 months,
मतलब ये नहीं है कि बुड्ढों की डिजीज है, मतलब हम बायोकेमिस्ट्री वाले हैं तो डाइट से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल लेसन याद रखना, 5 साल बाद जब ओपीडी में जाओगे ना प्रैक्टिस करने, तो यू हैव टू रिमेंबर, अगर कोई भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का पेशेंट आ रहा है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन कहां से बनती है? कार्बोहाइड्रेट से, है ना। और ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का कोई डिसऑर्डर आ रहा है पेशेंट, है ना, अल्केप्टोनूरिया, फिनाइलकीटोनूरिया, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन बताऊं, कोई ड्रग नहीं है, तुम कहीं काम करे हो तो बहुत मुश्किल है ना। सिंपल सॉल्यूशन मेरा याद रखना, रिकॉर्ड कर लो, निप द ईवल इन द बड। निप द ईवल इन द बड सुना है फ्रेज, निप द ईवल इन द बड। पर टक्कर दस यार इन्हों पंजाबी च बोल कोई मुहावरा दा, ना रहेगा बांस से ना बजेगी बांसुरी, बोला जाता है ना। निप द ईवल इन द बड क्यों बोलते हैं? जहां प्रॉब्लम शुरू हो रही वहां सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, वही है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, अगर स्पोर्स है, जीएसडी है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वही है प्रॉब्लम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, राइट। तो इसकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन क्या है? स्टॉप गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स टू द पेशेंट, सिंपल एज द बैक ऑफ हैंड, यू स्टार्ट विद कीटो डाइट, द पेशेंट विल शो रिस्पांस विद इन 15 डेज, सिंपल है। लेकिन वो हमारे मेडिसिन वाले देंगे, फार्मेसी बनाएंगे, लेकिन सिंपल है, बायोकेमिस्ट्री यूज करो, मैं 100% है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। और सिंपल, अगर ये वाले प्रोटीन वाले डिसऑर्डर आ गए ना, जो कोई भी है, पीकेयू है, कोई भी आएगा, भी करवा रहा हूं सारे, तो इसमें क्या है, डिप द ईवल इन द बड, उसको टोटली डिवाइड कर दो फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन से। तो क्या होगा, ये अगर मेटाबोलाइज नहीं हो रहे, तो अगर दे ही नहीं रहे, तो वी हैव डिप द ईवल इन द बड, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्यों? हम प्रोटीन दे ही नहीं उसको, कार्बोहाइड्रेट, उसकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट में चलाओ, आराम से चलेगा, लेकिन बार बार भूख लगेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन वी कैन मैनिपुलेट मेटाबॉलिज्म थ्रू बायोकेमिस्ट्री, राइट। दो दे आर ड्रग्स, दे आर वंडरफुल ड्रग्स, दे वर्क वेरी वेल, मेडिसिन हैरिसन में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा भी तो यूज करो, सेकंड प्रॉफ में जाना है तो मेरा भी लेके जाओ कुछ। निप द ईवल इन द बड, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, टोटली प्रोहिबिट कार्बोहाइड्रेट डाइट। प्रोटीन वाली डिजीज है, टोटली प्रोटीन, सिंपल है, काम करेगा, 15 दिन में रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। और जैसे मैंने अपनी स्टोरी सुनाई मेरी वाइफ के मासड़ जी की, क्या प्रॉब्लम थी? प्रोटीन ही नहीं खा रहे थे। प्रोटीन नहीं खाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बनेंगे? अब ये ईवल कहां स्टार्ट हुआ? वो खा ही नहीं रहा, जिससे फिनाइलएलानाइन बने, आगे टायरोसिन बने, आगे डोपा बने, डोपामाइन वो बन ही नहीं रही, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं खा रहा। तो प्रोटीन खिलाओगे, अपने आप बन गए सारे न्यूरोट्रांसमीटर। जिसको भी डिप्रेशन है क्लास में, एंजाइटी है, उसकी क्या प्रॉब्लम है? वो प्रोटीन नहीं खा रहा। आई समझ? जस्ट 2 eggs रोज खाओ, बॉइल्ड एग्स खा लो, उसका तो कोई बहाना नहीं है, यहाँ से बाहर से ले लो, अपनी कैटल में बॉइल कर लो, खा लो, रिजल्ट दिखेगा 5, 6, 7, 10 डेज में, डिप्रेशन जाएगा, 100% जाएगा। मैं बैठा हूं ना, सिंपल है ना, एज सिंपल एज द बैक ऑफ हैंड, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है ना। अब आके डिसऑर्डर शुरू करें, आ जाओ भी 7 चेयर्स लगाओ, टीम इंडिया जल्दी करो, 7 चेयर्स जल्दी। पैराहाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट, होमोजेंटिसेट, फिर बना 4-मेलाइल एसीटोएस्टेट एंड फ्यूमराइड, देन फ्यूमरेट विल एंटर टीसीए साइकिल एंड एसीटोएस्टेट विल एंटर फैट मेटाबॉलिज्म। थोड़ा ऊपर कर दो सारे, ठीक है, किसी और को बुलाने, लो एनर्जी। सो वी हैव फिनाइल रिंग, सॉरी गुड़िया, फिनाइल रिंग एंड अलानिन। दिस इज आवर फिनाइलएलानिन। First we introduced hydroxy group and the enzyme was phenylalanine hydroxylase. तो पैरा पे हाइड्रोक्सी लग गया, दिस इज अवर टायरोसिन बन गया। एंजाइम कौन सा था इसमें? phenylalanine hydroxylase। अब वी हैव टायरोसिन, राइट। टायरोसिन में हमने ट्रांसएमिनेशन एक्शन यहाँ करना जहां मैं खड़ा हूं, ट्रांसएमिनेशन की तो बन गया पैराहाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट, राइट। देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गए, होमोजेंटिसेट बन गया, देन होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज किया तो बन गया 4-मेलाइल एंड फ्यूमराइल एसीटोएसिटेट, राइट। देन 2 फेट आ गए, बिकॉज इज बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। फ्यूमरेट विल एंटर टीसीए साइकिल एंड एसीटोएस्टेट विल एंटर फैट मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? अब इस स्टेप पे और इस पे सब पे डिसऑर्डर एक आएगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का इसका। अब वो करते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम कौन सा हमारे पास?
लेट्स डिस्कस। बोलो मेरे बच्चों, फिनाइलएलानीन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहा है पैरा पोजीशन पे, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइलएलानीन। तो ये वाला एंजाइम नहीं है हमारे पास, दैट इज फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सीलेज। द फर्स्ट डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, इसमें से 200% पैराग्राफ्स में पेपर आना चाहिए। और सुन लो, मल्टीपल चॉइस दोनों में से एक इसमें से आएगा। कल कैप्टन पक्का आना है पेपर में, मैं डालूंगा तो मैं डालूंगा। इसको डोंट इसलिए बनाया कि तुम्हारी पिक्चर बन जाए, इसकी स्क्रीनशॉट फोटो खींच लेना हमारी, कोई बात नहीं। फिनाइल कीटोन यूरिया है तो वही है फिनाइलएलानीन इज कन्वर्टेड टू टायरोसिन, राइट। और इसमें हमारा ब्लॉकेज है एंजाइम का फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सीलेज। बच्चा समझ आ रही है? तो दिस एंजाइम इज नॉट देयर, तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट अकोमुलेट होगा, राइट, एंड इट विल अंडरगो ट्रांसएमिनेशन डायरेक्टली। तो क्या बनेगा? फिनाइल पायरुवेट एंड फिनाइल लैक्टेट, राइट। फिनाइल पायरुवेट एंड फिनाइल लैक्टेट। और ये क्या करेंगे? डिसऑर्डर का नाम सुनो, फिनाइल कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया मींस कीटोन बॉडीज इन यूरिन। व्हिच कीटोन बॉडीज? फिनाइल कीटोन बॉडीज इन यूरिन। Because this is not being converted to tyrosine, this metabolism is diverted for the synthesis of phenyl pyruvate and phenyl lactate, and they are excreted into urine. That is causing this disorder, right? अब इस disorder को कैसे ठीक करेंगे? पहला तो इसकी है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, लिख लो ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड इंसिडेंस इज 1 in 10,000 बर्ड्स, 1 in 10,000 बर्ड्स, राइट। और डिसऑर्डर का नाम सुन लिया, ध्यान से देखना, ऐसे याद करना है, फिनाइल कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया मींस कीटोन बॉडीज इन यूरिन। फिनाइल कीटोन bodies are there, that is why phenyl ketone urea. Because phenylalanine, the first step, this we are not introducing hydroxy group for further metabolism being transferred as tyrosine, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिसऑर्डर है, पहला डिसऑर्डर आ गया फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके फीचर्स क्या है? नंबर 1 इज सबसे इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारी प्लस 1 2 में आता था, माउजी ऑर्डर ऑफ यूरिन। क्लियर है? माउजी ऑर्डर इज देयर। एनीथिंग एल्स? सीएनएस में क्या सिम्टम्स आएंगे? फर्स्ट बताओ सिम्टम्स ऑफ सीएनएस। मेंटल रिटार्डेशन इज देयर और नॉट? लो आईक्यू इज देयर? यस। लो आईक्यू लेस देन 50 इज देयर। लो IQ, right? We have low IQ and the patient will have blue eyes and hypopigmentation is there and is also having fair hair, right? Diagnosis कैसे करोगे इसका? पहला तो माउजी ऑर्डर देखोगे, and there are 2 tests. One is Ferric chloride test and the second is Guthrie test. Right, and the conformity diagnosis is done by tandem mass spectrophotometry. These are the 3 diagnostic tests. One is Ferric chloride test, then is Guthrie test, and the third is tandem mass spectrophotometry for the diagnosis of phenyl ketone uria. अगर कहीं पे OPD कर रहे हो नहीं है तो you diagnose with Mauzy order, mental retardation, incapabilities are there, having low IQ, right? और इसमें क्या करोगे? ट्रीटमेंट में क्या डालोगे? अगर आप मेडिसिन कोई नहीं दे पा रहे सिम्टम्स को रिलीव करना, तो क्या करोगे? सेम फॉर्मूला, निप द इवल इन द बड। निप द इवल इन द बड, और ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा फिनाइलएलानीन तो ये डिसऑर्डर बजेगी बांसुरी इसकी? नहीं बजेगी। बिकॉज हमने यही, जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही उसको ही खत्म कर दिया ना हमने प्रोटीन खाना ही बंद कर दिया। फिनाइल डाइट टोटली प्रोटीन खत्म कर दी, कार्बोहाइड्रेट बॉडी चलाओ, चलेगी, मुश्किल आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन बॉडी चलेगी, बंदा आपको सिम्टम्स रिलीव आएगा, ठीक है। तो वी हैव निप द इवल इन द बड, इसको बंद कर दो। यही नहीं होगा तो आगे ये प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। फर्स्ट डिसऑर्डर क्लियर हो गया बच्चों को। अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पे। वी हैव टायरोसिन, व्हाट वाज इट? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइलएलानीन। अब क्या बना?
पैराड्रॉक्सी फिनाइल पारुवेट। एंजाइम कौन सा यूज हुआ था इसमें? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन था, तो टायरोसिन ट्रांसएमिनेशन। अब ये रिएक्शन खराब हो गया तो क्या डिसऑर्डर आएगा? लुक एट दिस थिंग, सेकंड डिसऑर्डर। सो मल्टीपल चॉइस जब आएगा तो यू विल हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टायरोसिनीमिया टाइप 1 एंड 2। अगर ये है हमारा डिसऑर्डर टायरोसिनीमिया टाइप 2, बिकॉज द एंजाइम इज सेकंड स्टेप पे ब्लॉक हो जा रहा है। दिस इज मोनोमिक फॉर दैट। टायरोसिनीमिया टाइप 2 सेकंड एंजाइम पे ब्लॉक हो रहा है, टायरोसिन ट्रांसएमिनेज पे, राइट। तो डिसऑर्डर इज टायरोसिनीमिया टाइप 2। इसके क्या सिम्टम्स होंगे बोलो? देयर इज accumulation and secretion of phenyl acetate, pyruvate and lactate in urine, वही सेम। और कंप्लेंट्स में आएगा डर्माटाइटिस, लिख लो डर्माटाइटिस, आइलियंस एंड हैविंग रेयर मेंटल रिटार्डेशन, रेयर मेंटल रिटार्डेशन, राइट। अब हम आगे अगेन नेक्स्ट स्टेप पे। दिस इज फिनाइल पारुवेट है हमारे पास, पैराड्रॉक्सी फिनाइल पारुवेट। क्या बनाया? होमोजेंटिसेट। और इस रिएक्शन को हमने किससे किया? वी आर यूजिंग एस्कॉर्बेट, विटामिन सी। तो इस पे डिसऑर्डर कौन सा आएगा? दैट इज नियोनेटल। थर्ड डिसऑर्डर दैट इज नियोनेटल टायरोसिनीमिया। नियोनेटल टायरोसिनीमिया हियर एट स्टेप नंबर 3। इसको कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट इसका क्या है? विटामिन सी सप्लीमेंटेशन, उससे थोड़ा सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे, ठीक है। बाकी डिटेल बाद में करेंगे जब एसडीएल में करेंगे। तो आगे नेक्स्ट डिसऑर्डर आ गया नंबर 4। 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास क्या था? होमोजेंटिसेट था। आगे हमने बनाए होमोजेंटिसेट से फॉर्मलाइन और दूसरा। तो इसमें क्या यूज होगा? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम यूज हुआ ना इसमें से। तो दिस इज द एंजाइम जो मल्टीपल चॉइस 100% डैम श्योर आएगा, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। और डिसऑर्डर का नाम क्या है? अल्केप्टोन यूरिया, राइट। और ये डिसऑर्डर कौन सा था? फिनाइलकीटोनुरिया। और ये वाला कौन सा है? अल्केप्टोनुरिया, राइट। फिनाइलकीटोनुरिया में क्या था? फिनाइल कीटोन्स इन यूरिन। इसमें क्या है? अल्केप्टोनुरिया। अल्केप्टोन से कम्युलेट होंगे कीनोन्स वाले, कीटो ग्रुप वाले किए थे, और वो बॉडी में जाके एथलेटस करेंगे, कम्युलेट होंगे, ठीक है। ऐसे याद करना है। और ये वाले में क्या था? टाइप 2 था, तो सेकेंड एंजाइम आ गया। थर्ड था तो नियोनेटल आ गया। फोर्थ पे हम आ गए अल्केप्टोनुरिया पे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे अल्केप्टोनुरिया को? ब्लैक यूरिन डिजीज था, तो अगर पहला एंजाइम है तो कौन सी थी? और ये फोर्थ वाले में, फोर्थ तो हो गया ब्लैक यूरिन डिजीज, और ये वाला था मौजी ऑर्डर। सो डिफरेंशिएट कर पाओगे? इफ ही इज हैविंग मौजी ऑर्डर द स्टेप 1 इज ब्लॉक्ड, फेनोलिक इनटू टायरोसिन। और अगर ब्लैक यूरिन है तो मेरे इससे स्टेप पे ब्लॉकेज आ रही है फ्रॉम कन्वर्शन ऑफ होमोजेंटिसेट टू ये। तो एंजाइम कौन सा था? होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। डिजीज इज अल्केप्टोनुरिया, राइट। दिस फोर्थ स्टेप होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? सॉफ्ट टिश्यू में, कार्टिलेज में अल्केप्टोन्स अकोमुलेट होंगे और वो क्या करेंगे? अर्थराइटिस और पेन करेंगे। डायग्नोस कैसे करोगे? कलर ऑफ यूरिन से। यूरिन ऑफ कलर इज कोक कलर और ब्लैक कलर। कोक कलर और ब्लैक कलर यूरिन। और ट्रीटमेंट निफ्टाइवल इन द ब्लड, डाइट लो इन फेनाइलएलानाइन। पहला स्टेप ही नहीं दोगे तो फोर्थ मेटाबोलाइट कम्युलेट होगा? नहीं होगा। क्लियर? आगे क्या करोगे? अब हम सीआर के पास आ गए। वी आर हैविंग 4-मेलाइल एसीटोएस्टेट एंड 4-फ्यूमराइल एसीटोएस्टेट। इससे आइसोमरेज करके हमने बनाया था, है ना। आइसोमरेज वाला स्टेप था 5th आइसोमरेज वाला, ठीक है। तो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज आ गया हमारा, वो हो गया। अब नेक्स्ट पे आ गए आइसोमरेज वाला, सीआर के आगे वाला। उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे?
First is liver failure and it is tyrosinemia type 1 is there. This disorder is, this was 1 and this is 1. तो 2 आएगा सेकंड स्टेप पे इस वाले पे और 1 आएगा CR वाले स्टेप पे। अब ऐसे माइंड में मैप बना के अपने खुद के मिनोमिक्स बना लेना चाहे तो ऐसे याद रहेगा। तो फर्स्ट डिसऑर्डर इज फिनाइलकीटोन्यूरिया, टायरोसिनेमिया टाइप 2, नियोनेटल अल्केप्टोनूरिया, अब टायरोसिनेमिया टाइप 1। अब हो गया समझ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो जब आएगी तब भी देख लेना।